Hello friends, welcome to Bankers Platform. So friends, today in this video we will be discussing multiple choice questions on the certification course of IRBF, that is foreign exchange facilities for individuals. So इस सर्टिफिकेट का जो एग्जाम है वो होने वाला है आपका जनवरी में 18th जनवरी. सो these questions we will be discussing, and these are the most expected questions also for this certification exam. So let's start with our first question. And if you're watching this video, if you are preparing for certificate course in foreign exchange exam, for that also this video will be helpful. These type of direct questions will not come, but whatever questions we are discussing here, that will come indirectly in the form of case study. तो अगर आप फॉरेन एक्सचेंज एग्जाम की भी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उस से रिलेटेड भी यहाँ से आपको लाइक बेनिफिट हो सकता है. ओके, so let's start. So our first question is, as per FEMA, as per FEMA 1999, a person resident in India means a person who has resided in India for more than 60 days during previous financial year, 182 days, 365 days, 240 days. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि किस पर्सन को हम रेजिडेंट इंडियन कहेंगे. ऐसा पर्सन जो 60 डेज लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 60 डेज के लिए इंडिया में रहा है, या ड्यूरिंग प्रिसीडिंग, ओके सेम लाइक लास्ट फाइनेंशियल 182 डेज के लिए इंडिया में रहा है, या 365 डेज के लिए, या 240 डेज के लिए. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So right answer will be B. So this is very easy question. Many time it is asked in this. Okay. So कोई भी person, any person who has lived, जो 182 days के लिए previous financial year में इंडिया में रहा है, that person will be called as resident Indian. Okay. That person will be called as resident Indian. So if you remember this question, you can get 1 mark, or half marks also it can come in the exam of foreign exchange facility for individual. Okay. So let's see next question. Question number two. An individual who has gone out of India for taking up employment abroad will be classified under FEMA as resident Indian, non-resident Indian, person resident in India, person resident outside India. तो फ्रेंड्स अगर कोई पर्सन है जो इंडिया से बाहर गया है, ओके, और क्यों बाहर गया, ही हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस. अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए ही हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया, तो उससे हम कौन सा स्टेटस देंगे, एज पर फेमा. सो राइट आंसर विल बी डी, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. सो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. Let's see next question. Question number three. Which of the following is not considered for determining रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा. तो इनमें से कौन सा है जो हम कंसीडर नहीं करेंगे किसी के रेजिडेंशियल स्टेटस को लाइक डिटरमाइन करने के लिए. पर्पस ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, सिटीजनशिप ऑफ द पर्सन, प्लेस ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पे आपको बताना है विच विल नॉट बी यूज्ड. ओके, सो फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए. ओके, सो लेट्स सी द राइट आंसर. करेक्ट आंसर इज सी, citizenship of the person. So whether a person is resident or non-resident, कोई पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, वो मैटर इससे नहीं करता है कि उसकी सिटीजनशिप क्या है. ओके, इट विल नॉट मैटर ड्यू टू सिटीजनशिप. अदर थिंग्स मैटर, पर्पस ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, लाइक अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि अगर कोई 182 डेज के लिए इंडिया में रहता है, तो वो 182 डेज के लिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे हम कहेंगे ही इज ए रेजिडेंट इंडियन. ओके, एंड प्लेस ऑफ बिजनेस. सो ये ए बी और सी जो है वो मैटर नहीं करती है, वो मैटर करती है, सॉरी, वो मैटर करता है वो रेजिडेंट है या नहीं, बट सिटीजनशिप विल नॉट मैटर. अगर कोई पर्सन है, सपोज सम पर्सन फ्रॉम यूएस हैज कम टू इंडिया, ओके, एंड he is staying in India for 182 days in previous financial year.
तो उस पर्सन को हम कहेंगे वो अब एक उसकी सिटीजनशिप जो है वो यूएस की है, बट वो इंडियन रेजिडेंट बन चुका है, ही इज रिजाइडिंग इन इंडिया। So this concept is applicable here. Okay. Next question is under liberalized remittance scheme, LRS. An individual resident can send up to USD dash per financial year for permissible current or capital account transaction. तो कोई भी पर्सन है अगर वो आउट ऑफ इंडिया, लाइक कोई भी रेजिडेंट पर्सन है, वो इंडिया से बाहर फंड भेजना चाहता है, ओके, अब्रॉड, तो वो एक फाइनेंशियल ईयर में, इन वन फाइनेंशियल ईयर, हाउ मच अमाउंट ही कैन सेंड? ऑप्शंस आर $1 lakh, $2.5 lakh, $2 lakh, $5 lakh. So what will be the right answer? Right answer is B. That is 2.5 lakh USD. 2.5 lakh USD वन कैन सेंड। सो कोई भी पर्सन जो इंडिया में है अगर वो फॉरेन पैसे भेजना चाहता है तो एक फाइनेंशियल ईयर में वो $250,000 ही भेज सकता है, उससे ज्यादा नहीं भेज सकता है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर एलआरएस कैन नॉट बी मेड फॉर। तो एलआरएस के अंदर जो है हम कौन सी पेमेंट नहीं कर सकते हैं? एजुकेशन अब्रॉड, परचेज ऑफ शेयर ऑफ ए फॉरेन कंपनी, मार्जिन ट्रेडिंग इन ओवरसीज मार्केट, गिफ्ट टू ए रिलेटिव अब्रॉड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो हम अंडर एलआरएस नहीं कर सकते। सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगर हमें एजुकेशन के लिए अब्रॉड फंड भेजना है हम भेज सकते हैं, परचेज ऑफ शेयर के लिए भी हम भेज सकते हैं, गिफ्ट टू रिलेटिव वो भी कर सकते हैं, बट मार्जिन ट्रेडिंग के लिए ओवरसीज फॉरेक्स मार्केट में अमाउंट हम नहीं भेज सकते अंडर LRS। तो फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो एक्सक्लूसिव LRS के ऊपर बनाया थ्रू द RBI मास्टर सर्कुलर। तो आप जो है लाइक प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दैट वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपके सारे डाउट जो है रिलेटेड टू LRS वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट है देन डू कमेंट। ओके, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू फॉर योर क्वेरी। एंड अदर थिंग इज दैट I would like to request all of you that if you're new to our channel, if you are new to our channel, so hit the subscribe button. Okay. So hit the subscribe button so that it will be a type of motivation for us. एंड जो भी हम नए वीडियोस डालते हैं वो आपके पास जल्दी से पहुंच सकेंगे, लाइक ऑल द नोटिफिकेशन, जो भी हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सकेंगे। सो आई होप सो कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो अभी सब्सक्राइब कर लिया है। ओके, सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो फ्रेंड्स, ये जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ओके, सो 60 क्वेश्चंस का सेट है, बट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग 20 क्वेश्चंस। ओके, तो आज के सेशन में हम 20 क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस नेक्स्ट ट्वेंटी, लाइक दैट इन 3 सेशन जो है हमारा ये वीडियो कंप्लीट होगा। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए रेजिडेंट मेक्स एन एडवांस पेमेंट फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, the importer must ensure the goods are received within 3 months from remittance, 6 months from remittance, 12 months from remittance, no prescribed limit। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी रेजिडेंट है, अगर वो एडवांस पेमेंट कर रहा है, ओके, एडवांस पेमेंट कर रहा है, किस लिए कर रहा है? इंपोर्ट करने के लिए। क्या इंपोर्ट करने के लिए? गुड्स। ओके, वो गुड्स इंपोर्ट करने के लिए अगर कोई भी एडवांस पेमेंट कर रहा है तो उसे कितने दिनों के अंदर ये इंश्योर करना है कि वो जो इंपोर्ट करने वाला है गुड वो इंडिया में आ चुका है, आ जाएगा, और कितने दिनों के अंदर वो आ जाना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ रेमिटेंस। ओके, 12 month फ्रॉम द डेट ऑफ रेमिटेंस। तो जो 12 मंथ है फ्रेंड्स, 12 मंथ नहीं होगा, यहाँ पे होगा 6 मंथ। ओके, सो राइट आंसर विल बी 6 मंथ, नॉट 12 मंथ। 6 मंथ फ्रॉम द रेमिटेंस डेट, 6 मंथ के अंदर वो गुड्स जो है वो आ जाने चाहिए। बट अगर ड्यू टू एनी लाइक
सिचुएशन, कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, या कुछ डिस्प्यूट और ये सब कुछ है, तो मैक्सिमम जो है वो 12 मंथ में आना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में इसमें ऐसा नहीं है कि मस्ट, इसमें है मस्ट इंश्योर। इसमें ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम टाइम तो नहीं पूछा गया है। ओके, सो अगर मैक्सिमम, इफ इट इज रिटन मैक्सिमम विद इन व्हाट टाइम, तो मैक्सिमम में सी विल बी द आंसर। बट हियर देयर इज नथिंग लाइक मैक्सिमम, दे आर सेइंग मस्ट इंश्योर। तो मस्ट इंश्योर में आपका है 6 मंथ। ओके, 6 मंथ में जो है, अगर कोई भी एडवांस पेमेंट करता है तो उसको 6 मंथ में जो गुड्स है वो इंपोर्ट कर लेना है फ्रॉम डेट ऑफ रेमिटेंस। एंड 12 मंथ विल बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंशन। सपोज 6 मंथ जो है वो पास अवे हो गए, तो बैंक जो है उसे नेक्स्ट 3 मंथ का और फिर एक और बार नेक्स्ट 3 मंथ का एक्सटेंशन दे सकता है। सो टोटल इट विल बी 12 मंथ, मैक्सिमम टाइम इज 12 मंथ। Okay, let's see next question. If an inward remittance received against export is not utilized and is required to be refunded, it must be। अगर किसी ने इनवर्ड रेमिटेंस मंगवाया है, IR, फ्रॉम अब्रॉड मनी हैज कम इनवर्ड रेमिटेंस, ठीक है, तो उसने किसी एक्सपोर्ट को करना था बट वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ। ओके, उसे उसने यूटिलाइज नहीं किया, तो उसे उसको रिफंड करना होगा। तो वो कैसे रिफंड करेगा? ए, रिफंड थ्रू द सेम AD बैंक, रिफंडेड इन कैश, रिफंडेड थ्रू एनी ब्रांच ऑफ एनी बैंक, रिफंडेड थ्रू फिजिकल ड्राफ्ट। तो वो किस तरह से रिफंड कर सकता है, दैट यू हैव टू टेल। सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। सो राइट आंसर इन दिस केस इज ए, दैट इज रिफंड थ्रू द सेम AD। जिस AD बैंक में, जिस ऑथराइज डीलर ब्रांच में वो फंड आया था, ओके, सेम उसी ब्रांच से उस IR को उसे एज ए OR रिफंड करना होगा। वाई सेम AD? क्योंकि इसी AD के पास वो डिटेल है। अगर वो किसी अदर बैंक, सपोज उसने अगर SBI में इनवर्ड रेमिटेंस मंगवाया और अब वो PNB में जाकर उसे आउटवर्ड रेमिटेंस भेजना है, देन PNB विल डिनाई दिस ट्रांजेक्शन। वाई? क्योंकि PNB के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ओके, PNB के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा कि इसने इनवर्ड रेमिटेंस भेजा, लाइक रिसीव किया था, नहीं किया था। सो देयर विल बी सो मेनी डाउट्स। सो इट इज इट इज मेड दैट कि आपको जो है वो सेम AD से ही रिफंड करना होगा। अदर ADs विल ऑल्सो नॉट एंटरटेन। जो दूसरी AD ब्रांचेस होंगी वो एंटरटेन भी नहीं करेंगी इस टाइप की ट्रांजेक्शन को, क्योंकि ये एक रिस्की ट्रांजेक्शन है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रिफंड ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस रिक्वायर। तो अगर हमें इनवर्ड रेमिटेंस को रिफंड करना है, ओके, लाइक यहाँ पे हमने किया, लाइक यू वांट टू रिफंड which is not utilized. So refund of inward remittance requires A, RBI prior approval, reporting to ED department, AD banks approval only, authorized dealer to certificate। तो आपको बताना है इनमें से क्या चाहिए अगर आप रिफंड करना चाहते हो इनवर्ड रेमिटेंस। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी हियर सी। सी इज द करेक्ट आंसर। तो AD अप्रूवल। ओके, AD बैंक अप्रूवल। तो अगर AD बैंक जो है, AD ब्रांच जो है, वहां का जो ऑफिसर है, इफ ही सेटिस्फाई with the transaction, so there is no requirement of any certificate or any approval, so AD bank can approve, क्योंकि उसी के पास वो इनवर्ड रेमिटेंस आया है। और अब आप अपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, और उसके बेस पे वो आउटवर्ड रेमिटेंस करके इस इनवर्ड को रिफंड कर सकते हो। ओके, सो इन दिस वे ट्रांजेक्शन विल बी completed। Let's see next question, question number 9. The main objective of AML compliance in foreign exchange transaction is ensuring profit for the bank, preventing illegal money flow and terrorism financing, improving customer service, avoiding operational risk। तो आपको बताना है कि क्या ऑब्जेक्टिव है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी का, कंप्लायंस का, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में। ओके, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? लेट्स सी। राइट आंसर विल बी बी, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, बी विल बी। इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेंड आपको हाफ मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, विच आर वेरी इजी। ओके, बिकॉज ओवरऑल 120 marks will be there in this exam. Oh, sorry, 120 questions will be there. Marks will be 100. You need 60 marks. आपको 60 marks चाहिए पास करने के लिए ये दिस सर्टिफिकेट फॉर एक्सचेंज फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल।
तो आपको 60 मार्क्स चाहिए, क्वेश्चंस होंगे आपके पास 120, और मार्क्स आपके पास होंगे 100, जिसमें लाइक 40 मार्क्स जो होंगे वो हाफ मार्क्स के होंगे। ओके, हाफ मार्क्स के 40 क्वेश्चंस होंगे, एंड अदर जो रेस्ट क्वेश्चंस है 80 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 1 मार्क। ओके, ये आपके मार्क्स हैं और ये आपके क्वेश्चंस हैं। ओके, सो मार्क्स, हाफ मार्क्स के 40 क्वेश्चंस एंड 1 मार्क्स के 80 क्वेश्चंस होंगे, एंड यू हैव टू स्कोर 60 मार्क्स। So exam is easy. You can easily score this marks because in this very direct questions are asked. Okay, direct questions ज्यादा होते हैं, case study कम होते हैं. Okay, case study based questions will be there, but it will be like 10 to 15 questions will be case study, and the rest will be easy to moderate level will be there, which you can easily do. Okay, आप easily इसे clear कर सकते हैं. And we are having the courses also, friends. हमारे पास जो है courses हैं. Okay, related to certificate course for foreign exchange exam. Okay, so certificate course for foreign exchange. Okay, we are also having the course on international trade finance, and we are also having foreign exchange facilities for individual. सो ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं, ये ऑल जो सारे सब्जेक्ट जो है वो फॉरेक्स से रिलेटेड है, और इन्हीं के ऊपर हमारा जो चैनल है वो बेस्ड है ऑन फॉरेक्स एजुकेशन। तो मेनली हमारे चैनल पे हम जो है आपको फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ही लाइक चीजें बताते हैं। ओके, वी शेयर ऑल द थिंग्स रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज ओनली, maximum. Okay, some additional banking terms will be there, but mainly we are focusing on foreign exchange. तो अगर आपको foreign exchange से related कोई भी course चाहिए, you can just visit to our app, or you can visit to our website. There everything is available. Okay, so let's move to next question. Question number 10. Suspicious transaction reports must be filed by customer themselves, banks or AD to FIU IND, RBI to Ministry of Finance, ओनली फॉरेन एक्सचेंज डीलर। तो आपको बताना है कि जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है वो कौन फाइल करेगा, कस्टमर खुद करेगा, बैंक्स या एडी ब्रांचेस करेंगी एफआईयू आईएनडी को, आरबीआई करेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, या ओनली फॉरेन एक्सचेंज डीलर जो है अब्रॉड वो करेंगे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर इन दिस। सो वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, बी इज द राइट आंसर। बैंक और एडी जो है वो करेंगे FIUIND, इस ऑर्गेनाइजेशन को। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Resident individuals are permitted to maintain foreign currency accounts abroad without any restriction, only with RBI approval. C. If they were non-resident earlier and open such account when abroad, only jointly with an NRI relative. तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, जो इंडियंस हैं, इंडिया में जो रेजिडेंट हैं, वो परमिटेड हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड ओपन करने के, क्या विदाउट रिस्ट्रिक्शन है, या विद आरबीआई अप्रूवल है, या इफ देवर नॉन रेजिडेंट, अगर वो पहले नॉन रेजिडेंट थे तो उस तरह का अकाउंट है तो अलाउड है, या ज्वाइंटली होना चाहिए एनआरआई के साथ। सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी, इफ दे वर नॉन रेजिडेंट अर्लियर एंड ओपन सच अकाउंट व्हेन अब्रॉड। अगर कोई भी फ्रेंड्स लाइक इंडियन, ओके, ही इज गोइंग आउटसाइड और वहां जाकर उसने कोई अकाउंट ओपन करवाया था नॉन रेजिडेंट, तो उस केस में जो है वो अकाउंट अलाउड है, अदरवाइज इट्स नॉट परमिटेड टू हैव फॉरेन करेंसी अकाउंट। ओके, सो अब्रॉड, सो अब्रॉड में होने के लिए आप कभी गए होने चाहिए। ओके, यू शुड हैव गॉन to foreign country, and then there you have opened the account, so that will be allowed. But living, you are continuously, you are resident, you are living in India only, and from staying in India you are opening account abroad, so that is not correct. Okay, वो कुछ exception cases में open होगा, like if you are about to go for studies, you are about to go for employment, उस केस में कुछ accounts open करने पड़ते हैं, that is a compulsion obligation, but other cases में it is not allowed. Okay, सो हेयर दैट टाइप ऑफ सिचुएशन इज नॉट देयर। यहाँ पे वैसे सिचुएशंस के साथ क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सो द आंसर विल बी सी। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट अलाउड अंडर फेमा। तो यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा ऐसा अकाउंट है
जो एक फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं है, जो फेमा के अंडर अलाउड हो। ओके। ऑप्शंस आर आरएफसी अकाउंट, ईईएफसी अकाउंट, एनआरई अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट। सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। ओके, सो here let's see the answer. So that is a C. Okay, C is the correct answer. So C जो है that no, not a C. One second. C will also not be there. Actually, here no option is not there because these all accounts are allowed under FEMA. You can open RFC account, you can open EFC account, you can open NRE account, you can open FCNR account. Okay, so here it will come all of the above, which is not a type of foreign currency account allowed. Not a type. So they all are allowed. All of the accounts are allowed. Okay. So none of these account will come. Okay. None of the above. That option is not available here. Let's see next question. Question number 13. A resident individual can invest in share of a foreign company under FDI scheme, ODI scheme, LRS scheme, both B and C. सो रेजिडेंट जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर में फॉरेन कंपनी में, और अगर कर सकते हैं तो किस स्कीम के अंडर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी, बोथ बी एंड सी। सो ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम है, और एलआरएस में भी वो कर सकते हैं। ओके। इन्वेस्टमेंट अब्रॉड बाय इंडियन पार्टीज मस्ट बी रिपोर्टेड टू आरबीआई थ्रू एडी कैटेगरी वन बैंक, एडी कैटेगरी टू बैंक, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। सो कौन से बैंक लाइक किसके थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट अब्रॉड जो है वो रिपोर्टिंग करनी है। द राइट आंसर इज ए, दैट इज एडी कैटेगरी वन बैंक। तो जो एडी कैटेगरी वन बैंक है वही ऑथराइज है रिपोर्टिंग करने के लिए टू आरबीआई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Borrowings by resident in foreign currency are generally governed by External Commercial Borrowing Guideline, FEMA Regulation 51B, FCRA 2010, Banking Regulation Act। तो जो भी बोरिंग्स है जो बाय रेजिडेंट है इन फॉरेन करेंसी, वो कैसे गवर्न करते हैं। ओके, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग गाइडलाइन। दे हैव टू बोरो as per the external commercial borrowing guidelines. Okay, question number 16. An Indian company can borrow An Indian company can borrow in foreign currency from overseas entity, only from its foreign equity holder or recognized lender, from any individual abroad, from Indian banks only। तो जो भी इंडियन कंपनीज है वो कैसे फॉरेन करेंसी में बोरो करेंगे। एंड राइट आंसर इज बी, ओनली फ्रॉम इट्स फॉरेन इक्विटी होल्डर और रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। ओके। क्वेश्चन नंबर 17। Export of gifts up to a value of dash per consignment is permitted without RBI approval। सो कितने तक का जो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो अलाउड है। 25,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज। सो यू हैव टू गिव द राइट आंसर। ओके, राइट आंसर इज 5 लाख रुपीज। सो 5 लाख रुपीज तक के जो भी एक्सपोर्ट गिफ्ट्स हैं दैट कैन बी गिवन पर कंसाइनमेंट, दैट इज विदाउट आरबीआई अप्रूवल। So friends, जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे दैट यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस फर्स्टली बाय योर own self, and then you see the answer. Question number 18. A forward contract booked by a resident exporter with an AD bank can be cancelled or rolled over without any restriction, with AD approval, only with RBI approval, only before shipment। तो अगर किसी ने भी कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है रेजिडेंट एक्सपोर्टर ने, तो वो कैंसिल और रोल ओवर अगर वो करना चाहता है तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है। ओके, दैट यू हैव टू टेल। सो राइट आंसर विल बी बी,
Okay, so B will be the right answer. That is AD approval because it is a bank and customer dealing. Bank and customer dealing is here. So this customer is a exporter. तो ये एक एक्सपोर्टर है. इसने जो है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया था. ओके, नाउ ही वांट टू डू कैंसलेशन और रोल ओवर. So in both case, he has to approach the bank that is AD bank, and that bank will decide to do or not. So approval will be given by the bank only. Okay, let's see next question. Question number 19. Traveler's check in foreign currency can be encashed by a resident within how many days of return to India? तो अगर कोई ट्रैवलर चेक है फॉरेन करेंसी में जो इनकैश करवाना है रेजिडेंट इंडियन को, तो वो कितने दिनों के अंदर, उसके रिटर्न के कितने दिनों के अंदर उसे करवाना है? Okay, so options are 30 days, 60 days, 90 days, 180 days. So what will be the right answer? And right answer will be D. Okay, that is 180 days. तो विद इन 180 डेज जो है उसे जो भी फॉरेन करेंसी लाइक ट्रैवलर चेक है वो उसे रिटर्न करना है, लाइक एंड कैश करना है. और दिस इज द सेम गाइडलाइन फॉर फॉरेन करेंसी, क्योंकि जब कोई भी अब्रॉड जा रहा है तो वो फॉरेन करेंसी लेगा बैंक से या किसी मनी लैंडर मनी एक्सचेंजर से. ओके, तो उस केस में वट एवर अनस्पेंट मनी फॉरेन करेंसी इज विद हिम, तो उसे 180 डेज में वो रिटर्न करना है. ओके, nobody can hold the foreign currency, and one can hold the foreign currency up to 2000 USD if he is a frequent traveler. ओके, और अगर आपको कॉइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि कितने डॉलर तक का, कितने अमाउंट तक का कॉइन जो है कोई रख सकता है फॉरेन करेंसी में, सो देर इज नो लिमिट, अनलिमिटेड. ओके, कॉइन पे कोई लिमिटेशन नहीं है बिकॉज कॉइन इज इन बल्क एंड देर इज नो लिमिटेशन. Nobody will keep that much coin also. Okay, so let's see last question of the day, that is 20th question. Purchase of foreign currency notes or traveler check from public can be done only by any scheduled bank, authorized dealer category 1 or FFMC, any money changer, any travel agency. तो आपको बताना है कि परचेज जो है कौन फॉरेन करेंसी नोट्स को परचेज कर सकता है पब्लिक से या ट्रैवलर चेक को. सो राइट आंसर विल बी बी. ओके, B will be the right answer. That is authorized dealer category 1 या FFMC, फुल फ्लैज मनी चेंजिंग. ओके, FFMC कई बार जो है फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस. FFMC, फुल फ्लैज मनी चेंजर. ओके, so B is the right answer in this case. So first we have discussed 20 questions and I hope so you like these questions. Okay, and these questions are the most expected questions. You can expect out of these 20, I can guarantee you, you can expect some five questions from here, okay, in the exam. So if you have watched this, so you will definitely answer five questions. Okay, so thank you, friends. Thanks for watching. Do hit the like button if you like the video and have a nice day.